everyone. I'm Rahmat, working with this company from last 2 years, and I had a great experience with her. On his 7th anniversary of the company, I hearty congratulations to Mr. Chaudhary sir. And I want to share something, some knowledge about the business to all of our staff and relatives. We see business, there are 2 types of business. One is growth business and another is survival business. In the name only you can see the difference. Growth business means always they will focus on profitable and scalable business. And survival business means they only focus on monthly survivals, like paying the salaries of workers and paying rents and electricity bill. See, everyone wants growth business, right? So we have to focus. There are some points I want to discuss with you, right? Growth business means focus on scale and expansion. The business which is growth business, they will always focus on scale and expansion. For example, MRF company, lot of Tata company, lot of other companies are there. Reliance company, Jio, everyone knows that. They always focus on scalable and profitable business. They will not see for the just monthly survival. This is the one point. Another point is great products plus expertise in income generating skills. Great products plus expert in income generating skills, which is survival business, that is expertise only in products and poor in income generating skills. Third point is focus, give 80% effort on marketing for value addition and 20% effort to sales. The firm which is growth business, they always focus on marketing. 80% effort on marketing and 20% effort on sales. Which is survival business, they only reactive in marketing and depend on words of referrals of business. Expecting customers. They just which is survival business, they only depend on the referrals. And which is growth business, they will always focus on marketing. 80% effort they will keep on marketing and 20% effort in sales. And growth business, ग्रोथ बिजनेस बोले तो ऑलवेज बोले जो है ना फोकस करते एक्सपेंशन और ग्रोथ पे, कंपनी आगे बढ़ने के लिए सोचते। वो दूसरे आते हैं सर्वाइवल बिजनेस बोले तो वो लोग जो है ना जस्ट मंथली इतना सैलरी बन रहा, लेबर्स का इलेक्ट्रिसिटी इतना बिल है, रेंट इतना देना है, तो मंथली सर्वाइवल में लगे हुए रहते वो लोग। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि डिफरेंस है ग्रोथ बिजनेस में और सर्वाइवल बिजनेस में। 3 पॉइंट बोला मैं आप लोगों को। जो ग्रोथ बिजनेस रहता ऑलवेज कभी भी जो है ना फोकस करता स्केल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। अभी एक ब्रांच है हमारा, ऐसे 4 ब्रांच कैसे बनना, 5 ब्रांच कैसे बनना, तो एक्सपेंशन लंबा सोचता हूँ। और जो सर्वाइवल रहता बस उसको बस जो है उसमें इतना सैलरी बन रहा, इतना रेंट बन रहा, कोई सोचते रहता। ये डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट मैं बोला आप लोगों को, ग्रेट प्रोडक्ट्स प्लस एक्सपर्टाइज इन इनकम जनरेटिंग स्किल्स। देखो प्रोडक्ट तो हर कोई बनाता, प्रॉफिटेबल वाला ही बनाता, सर्वाइवल वाला ही बनाता, लेकिन जो प्रॉफिटेबल स्केलेबल वाला है तो क्या करता, उसके पास इनकम जनरेटिंग स्किल्स रहते, उसको पता है कस्टमर से कैसे पैसे निकालना, कैसे एडवांटेजेस बताना। सर्वाइवल में क्या है, उसमें पूर रहते हो। थर्ड पॉइंट है आपका फोकस ऑन मार्केटिंग। 80% फोकस जो है मार्केटिंग पे करता है। सर्वाइवल वाला क्या है ना, जस्ट माउथ रेफरल से उन्हें क्या कस्टमर्स को एक्सपेक्ट करता हूँ, जस्ट माउथ रेफरल से मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट खाली माउथ से बोल रहा हमारा अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो कोई भी सुनने वाला नहीं रहता। 3 पॉइंट
है आपको, ग्रोथ बिजनेस में डोंट हैव टू प्लीज एवरीवन. सी आवर ब्रांड, आवर कंपनी इज 6 years completed and 7th year starting. So अपनी कंपनी का एक ब्रांड है संध्या फ्लेक्स, अभी मार्केट में आ रहा है. एक ब्रांड बन के बाद जो है ना अपन को किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं रहती. सर आप ले लो, हमारा अच्छा है बोलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क आ गया. एग्जाम्पल टाटा है, रिलायंस है, कोई भी उसको नहीं पूछा, ब्रांड दिख गया तो ले लेता. तो ऐसे जो ग्रोथ बिजनेस वाले रहते हैं वो लोग मार्केटिंग पे फोकस करते हैं. एक बार ब्रांड बन के बाद आपको जो है ना कस्टमर्स को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है. सर आप ले लो नहीं, तो खुद लेगा आपसे, क्योंकि आपका ब्रांड बन गया. ये एक पॉइंट है. जो सर्वाइवल वाला रहता है ओनली फोकस ऑन सेल्स, खाली सेल बस, उसको ग्रोथ से मतलब नहीं रहता. ओनली सेल्स, खाली आप बेच रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, उससे फीडबैक लेना पड़ता आपको, इम्पोर्टेंट है. और एक रहता सिस्टम ड्राइवन बिजनेस. जो ग्रोथ बिजनेस रहता उसमें एक सिस्टम रहता, सिस्टम ड्राइवन बिजनेस. तो अगर एक दिन अगर मालिक भी नहीं गया तो सिस्टम काम करता कंपनी में. तो सिस्टम ड्राइवन बिजनेस होना चाहिए था. सर्वाइवल बिजनेस में क्या सिस्टम चलता, बस एक ही वन मैन फ्रीलांसर पूरे काम उसको दे देते. सिस्टम रहा तो क्या है, क्लियर गोल्स, क्लियर एक्टिविटीज देना पड़ता वर्कर को, जिससे अपना फर्म ग्रोथ होता है. ये हो गया. और क्या आपका प्रिपेयर सिस्टम इन कंपनी. सिस्टम रहना बहुत जरूरी है. विदाउट सिस्टम कभी भी कंपनी का ग्रोथ नहीं होता. सिस्टम रहना है कंपनी में. जैसा कि एक आदमी सब काम दे रहे उसको, और जो है ना खाली आप एज ए ओनर क्या समझते मालूम है, एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एवरी एम्प्लॉयर. ओनर एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एवरी एम्प्लॉयर, दैट इज रॉन्ग. वो गलत है, क्योंकि आप क्लियर गोल्स देना कर एम्प्लॉयर को. देख भाई तेरा काम ये है तो ये करना, तेरा काम ये है तो ये करना. और ओनली फ्रीलांसर एक आदमी रहा तो इट्स नॉट ए कंपनी. फॉर कंपनी ऑलवेज रिक्वायर्ड टीम. फॉर कंपनी ऑलवेज रिक्वायर्ड ए टीम. टीम वर्क इज लाइक द टीम, यू नो. टीम वर्क रहा तो क्या उन्हें सक्सेसफुल होता है. सिंगल पर्सन रहा था, अब सब कुछ उन्हें करना बोले तो ना होता ना. अगर उसको बिजनेस ग्रोथ करना है तो टीम वर्क की बहुत जरूरत है. और आई वांट टू टेल यू 3 reasons why business owners get stuck in the trap of survival. 3 reasons है आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, जिससे हर ओनर जो है ना एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसको हर चीज करना पड़ता. वो 3 चीजें क्या है, बिजनेस मॉडल गैप फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है क्या आपका अनक्लियर सिस्टम. थर्ड पॉइंट है आपका इनएफेक्टिव टीम. बिजनेस मॉडल गैप, आपका मॉडल गैप कैसा है, जिसमें लो मार्जिन है और स्लो पेमेंट्स है, इनकंसिस्टेंट सेल्स है आपका, तो क्या है ग्रोथ नहीं होता है, जिसकी वजह से ओनर को अंदर बिजनेस में आना पड़ता. तो ऑलवेज इन द बिजनेस की जगह ऑन द बिजनेस रहना सबके लिए अच्छा है. अगर उन्हें ओनर सब कुछ करते रहा तो उन्हें ग्रोथ पे फोकस नहीं कर सकता. ये क्यों बचता है, एक तो बिजनेस मॉडल गैप, एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है आपका अनक्लियर सिस्टम. सिस्टम अगर क्लियर नहीं समझो, कोर एक्टिविटी क्लियर गोल नहीं दिया आप एम्प्लॉयर को, तो यू कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड अ सिस्टम इन द कंपनी. कंपनी में सिस्टम रहा तो सिस्टम काम करता हो. खाली अपन हर एम्प्लॉय से क्या समझते हैं, अपन एक लेबर है मेरा, उन्हें हर काम करना बोलते हैं, लेकिन वो गलत है. एक क्लियर गोल हर एम्प्लॉयर को देना, तो जिससे क्या है कंपनी भी ग्रोथ होती, एम्प्लॉयर भी ग्रोथ होता है. थर्ड क्या है आपका इनएफेक्टिव टीम, लैक ऑफ स्किल्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट, लैक ऑफ कमिटमेंट. लैक ऑफ स्किल्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट. अब अनस्किल्ड लेबर को ला लिए अपन, अनस्किल्ड फैकल्टी को हायर कर लिए, और उनसे अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना ग्रोथ बिजनेस का, नहीं होता हो. उसके लिए क्या करना अपन को, स्किल पर्सन को तलाश करके लेने का रखो. चाहे लेबर ले लो आप, ऑफिस का पर्सन ले लो, उसके अंदर काबिलियत रहना, तो क्या है कंपनी ग्रोथ होगा. लैक ऑफ कमिटमेंट्स, अपन बहुत सारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को क्या करते हैं, कमिटमेंट देते हैं. सर वी विल रिमाइंड यू आफ्टर 2 days, 3 days और आफ्टर 1 hour.
तो उस कमिटमेंट पे अपन खड़े रहना है। वो कमिटमेंट जो दिए अपन उसको मार्किंग कर लेके, बुक में नोट कर लेके उसको नॉट करना होता है। तो उससे क्या है, बिजनेस आने की चांसेस रहते हैं। और लास्ट एक पॉइंट, लास्ट थ्री फोकस एरियाज टू बिल्ड ए ग्रोथ बिजनेस। 3 एरियाज ऐसे हैं जिस पे फोकस करने से बिजनेस ग्रोथ होता। 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे फोकस करने से बिजनेस ग्रोथ होता। फर्स्ट वाला क्या है, बिजनेस मॉडल स्ट्रैटेजी। एक हर एक बिजनेस का एक स्ट्रैटेजी रहना। स्ट्रैटेजी कौन सा रहना, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल। स्केलेबल बोले तो नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होना और अपने ब्रांचेस बढ़ना, स्केलेबल बोलते हैं, बड़ा। और क्या है, प्रॉफिटेबल। विदाउट प्रॉफिट इंक्रीज ग्रोथ नहीं होता, तो प्रॉफिट भी रहना और स्केलेबल भी रहना। ये एरिया पे फोकस करने की जरूरत है। और एक क्या, सिस्टम। जैसे आपको बोला मैं, फाइनेंस सिस्टम टू सेट गोल्स। सिस्टम, हर एक सिस्टम का एक गोल होना चाहिए। आप फुटबॉल देखे होंगे, आपको फुटबॉल मालूम है आपको, तो लोग का गोल रहता है क्या है, फुटबॉल उसके अंदर मारा तो गोल रहता है। तो ऐसे जो है ना, अपने सिस्टम का एक गोल रहता है। उसमें क्या है, 2 है, फाइनेंशियल गोल एंड फंक्शनल गोल। फाइनेंशियल गोल यानी आप मंथली आप सपोज 15 लाख का बिजनेस करें, तो आपका गोल रहना भाई नेक्स्ट मंथ में 1 लाख 2 लाख बढ़ा के करूंगा, गोल रहना, टारगेट रहना। और क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका टीम। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है अलग अलग पर्सन रहते हैं, HR रहता, टीम लीडर रहता, सुपरवाइजर रहता, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम बॉटम ऑफ द कंपनी टू टॉप ऑफ द कंपनी, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। हर एक का अलग अलग रेस्पेक्ट है, हर एक जना इम्पोर्टेंट है। तो छोटा आदमी है वो बेकार है, वो नहीं बोल सकता। छोटे आदमी से बड़े आदमी का पता मिलता है। छोटे आदमी को जो है ना कभी भी इग्नोर नहीं करना और कभी भी उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, रेस्पेक्ट सबको देना। और टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट। सी देयर आर 5 फिंगर्स, ये 5 उंगली मिलेगा तो एक मुट्ठी बनता। So this you can fight with everyone. If it is single, you cannot fight with the other person. Fight in the sense of communication, right? ये होगा लास्ट पॉइंट, ये आपको बोल रहा था। टीम वर्क जरूरी है। और if you are capable, you build a capable business. Learn, growth and improve. This is my last point. Learn, growth and improve. Don't leave learning. Learning is important. Learning is from birth of ourselves and to the death of ourselves. We don't have to leave the learning. अपन को क्या है, जिंदगी भर जो है ना सीखते रहना। अपन कोई चीज आ गया बस है बोल के नहीं रहना, जिंदगी भर अपन कुछ ना कुछ सीखते रहना। एक एग्जाम्पल मैं आपको देके अपने स्पीच क्लोज कर रहा हूँ। एक मैं ओमान में काम कर चुका हूँ, वहाँ पे क्रिस्टोफर बोल के एक आदमी था, इलेक्ट्रिशियन था, इलेक्ट्रिकल मैनेजर था। टॉप मैनेजर हूँ मैं, कम से कम उसका 25 to 30 years का उसका एक्सपीरियंस है। इवन I have one book with him every time. He told me that, तो क्या बोला मेरे को, every day I read 1 page. Every day I read 1 page to gain or increase my knowledge and to remember. See, बहुत सारी चीजें रहते जो अपन याद नहीं रहता, जो अपन को मालूम रहता बट याद नहीं रहता, तो वो अपन को याद आना बोले तो उसको रिफर करते रहना। लर्निंग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और कोई भी लेबर या वर्कर को रेस्पेक्ट देना चाहिए। हर एक का अपना अपना महत्व रहता। बस इसी के साथ अपनी स्पीच क्लोज कर दूँ एंड कंग्रेचुलेशन।